Okay. Hi everyone, I'm Soumya Sharma. I've secured rank 9 in this year's Civil Services examination. So in this video I'm going to talk about my law optional strategy, about my sources and a general way on how to prepare for this optional. So first of all, law as an optional subject, it seems, is not very popular, primarily because it is considered to be a non-scoring optional. However, let me tell you, every year many people do very well with this optional subject. It's about, if you have an interest in this optional subject, I would certainly recommend you to take this one. So before that, a few pointers. First of all, the syllabus for law optional is very expansive. It covers a wide range of laws. So you should know that to cover this optional, it will take some amount of your time. So you have to take out time for this optional in a well prepared manner. Secondly, it is not essential that you should have a degree in law or you should be a law graduate to take up this optional subject. We have many people who have cleared the UPSC exam by taking law as an option, but they are not law graduates. So let not that be a deterrent for you. If you have an interest in this subject, then you should definitely go for it and take it as an option. So briefly, one thing is that if you take law as an optional subject, first of all, it will help you enormously with your general studies 2 paper. The polity part, the governance part, in fact even the international relations part is kind of similar with the syllabus for the law 1 paper. So you will be having a good understanding of all these issues for the general studies 2 paper, and that will help with the preparation. However, one thing which needs to be said at the very beginning is that the kind of answers that you write for your GS2 paper and the kind of answers that you're writing for your law optional paper should be very different. This shouldn't be similar, because if you write your general studies 2 paper answers like a lawyer, it may affect the score that you receive in that paper. Your GS answers have to be written from a very generalist point of view, and your law optional answers have to be written just like a lawyer. So this is the basic brief about law as an optional subject. Now I will briefly cover the sources that I referred to. Like every optional paper, Law 2 has 2 papers, Law 1 and Law 2. Law 1 covers international law, constitutional law and administrative law. So the one good thing which happened with me was that I myself am a law graduate. I graduated last year from National Law University, Delhi. So I have studied law for 5 years and I had my notes, very comprehensive notes from college time. Now these notes were nothing but just case laws written in detail and general observations from the class. So these helped me a lot from the preparation, but I'll tell you which sources you should refer to prepare these subjects. For constitutional law, you should refer to MP Jain. The book is bulky, but for certain topics, especially fundamental rights, you should refer to MP Jain or MP Singh, any one of these. I refer to MP Jain. In addition to this, for all these subjects, you can refer to Dukkis. Dukkis are essentially guidebooks and you can get them from any particular shop. I got mine from Jain bookstore in CP. So you can go there and buy Dukkis for all subjects. You can refer to constitutional law Dukki. It has covered majority of the syllabus in a very concise manner. However, don't fully rely on any one source, make your own notes also. So I made my own notes for constitutional law. I relied on my classroom notes from college, which were essentially important case laws. That's very important to cover all important case laws for constitutional law. That is primarily about constitutional law. Then moving on to administrative law. This is a significant part of the question paper. Like, it is not a very expansive topic, as if you look at it, the length of it is not much, but it's a very important topic because every year they will ask you some questions from administrative law. So for this, there's a book by IP Masti. You can refer to that book, and you can also refer to Dukki for administrative law. That will also help. Moving on to international law, this again forms a very big part of the syllabus and the question paper. So make sure to cover it well. My sources for these were Shaw for international law, a book by S.K. Kapoor for international law. These two are important. In addition to this, there are certain other topics towards the end, like WTO, IMF, that and all these things. For these, just go to the internet, read up on these topics and make your own notes. That will help you with the law 1 paper. Now coming to law 2 paper. So law 2 is about law of crimes, law of torts, mercantile law and various other laws. So for law of crimes, this is a very important and expansive topic. Refer to the IPC in detail.
refer to any one book by K.D. Gore or Pillai. It can be any. Plus, you can also refer to the Dukhi if you have covered the syllabus sufficiently. In addition, refer to important case laws. They are very important for IPC. Similarly, for TOTS, there's a book by Bangia. You should refer to that and finish your TOTS syllabus. For contracts, refer to this book by Avtar Singh. It refers to the syllabus in detail. It is very important that your basic concepts on contracts should be very clear to you. So for covering the basic concepts, do refer to Avtar Singh. Plus, in addition to that, you can refer to Dukhi for contracts. For all these small acts that we have in the mercantile law part of the syllabus, such as agency, sales of goods, partnership, negotiable instruments act, you can buy booklets by various coaching centers which have covered these acts in detail. Buy any one booklet which suits you, plus refer to the BEAR Act, or make sure that you're covering the acts properly, because although they may seem to be a lot, but every year questions may be asked from these, and they all are asked from any of these acts. So cover this in detail as well. For other topics, including in this part such as ADR, competition law, again these are the topics which should not be missed. See, for any strategy that you make, I think one of the most important things is that your optional subject should be covered in detail. So do not leave out any part of your optional subject. You should cover each and every topic, because you might be asked anything, and optional is the one paper in which you have to show a full command and mastery over the topic. So just don't leave out any topic. So this was briefly about the sources. Now I will tell you about how I studied from these sources. So first of all, a first reading of all these books and notes and everything which I had with me. Once that is done, what I used to do was, once one particular topic is finished, I used to go through previous year questions asked from that topic. So a book is available in the market by Ambition Law Institute. It covers previous year questions for law optional in a topic wise manner. So for instance, if I've studied torts, what I used to do was, right after finishing torts, I used to go through all the previous year questions of torts and try to mentally answer those questions. I did not write them down, but I used to think if I can answer these satisfactorily. So this used to also work as a revision for me. So this was done. Plus, in addition, I joined a test series. This was again by Ambition Law Institute. Now, this test series was important because I learned how to time myself and how to choose between the 8 questions that I given. So you can also join a test series. So and another thing, the kind of answers that you write in law. So just like your general studies answers, your law optional answer should be, first of all, a brief introduction. It always makes your answer look good. Then moving on, state the law. For whichever law is applicable to that particular question, mention that. Then give a brief analysis of it, like what the question is answering. Answer that in the analysis part. Give your arguments, counter arguments, all of that. If they need be, also refer to illustrations and examples. And another very important thing is case law. Case law should be mentioned. Section numbers where you know should be mentioned. Article numbers should be mentioned. All of this rounded off for the conclusion. This would make for a good answer in your law optional. And make it a point to practice writing answers in a particular way and have your own style of answer writing ready. So this was all about law optional. If any of you have more queries on the law optional, you can refer to my blog. It's soumya711.wordpress.com. Here I have shared my law optional test copy and notes as well, along with my detailed strategy. So you can just refer to that. So that was all about law optional strategy. I hope this helped you. Hello everyone, I am Dr. Neha Jain. I have secured All India rank 14 in the Civil Services examination. Although I am a dentistry graduate, but I took up law as my optional, and therefore through this I want to share my law strategy. Law is definitely a very interesting subject. It's a very logical subject. So it's not something which is to be mugged up, या फिर हमें लगता है कि इसको सेक्शंस याद करने होते हैं या बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है. उस तरह का सब्जेक्ट लॉ नहीं है. लॉ लॉजिकल सब्जेक्ट है और बहुत कॉमन सेंसिकल सब्जेक्ट है. मैंने लॉ के लिए 3 जगह से हेल्प लिया था. एक तो निर्वाणा IAS अकेडमी जो तिलक नगर में है और रोहिणी में है, वहाँ पे आई यूज्ड टू गो फॉर लॉ कोचिंग.
उसके बाद आई वेंट फॉर द लॉ कोचिंग इन लॉ एम्बिशन इंस्टीट्यूट इन राजेंद्र नगर, एंड आई ऑल्सो टुक अप ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम लॉ एक्सपर्ट्स MV. बिकॉज मैंने स्टैंडर्ड बुक्स लॉ की नहीं पढ़ी हैं, बिकॉज मेरा लॉ बैकग्राउंड नहीं है, तो मैंने हमेशा हेल्प ली है नोट्स की. तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स के नोट्स मैं पढ़ती थी, आई यूज़ टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि जब भी आप नोट्स पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखें. यू हैव टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवरी टाइम. हमेशा मेरी स्ट्रैटेजी भी यही होती थी कि अगर मैं लॉ के लिए कोई सब्जेक्ट को, कोई टॉपिक को पढ़ रही हूँ, तो मुझे, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड नहीं है, सो देयरफॉर आई मेड श्योर दैट आई हैड क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ मी. तो अगर आप क्वेश्चंस की बुक्स ले आएँ, क्वेश्चंस कंपाइलेशंस आपको लॉ के अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप उस तरह के ईयरली क्वेश्चंस ला सकते हैं या फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ला सकते हैं. यू कैन जस्ट डू वन थिंग, आप एक टॉपिक को पढ़िए लॉ में. सपोज आप क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, तो क्रिमिनल लॉ में सारे नोट्स को पढ़ें, जहाँ से भी आप अच्छे नोट्स गैदर कर सकते हैं. रेलिवेंट केस स्टडीज़ को देख लें, लेकिन उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. क्योंकि अगर आप का क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन नहीं होगा, स्पेशली फॉर पीपल हु आर नॉन लॉ ग्रेजुएट्स, क्योंकि हमने कभी लॉ एग्जाम्स नहीं दिए होते हैं, तो इसलिए हमें लॉ के क्वेश्चंस का फ्रेमिंग भी नहीं पता. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर कि आप कितना लिख पा रहे हैं. उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली लॉ या कोई और ऑप्शनल भी, इनफैक्ट दिस स्ट्रैटेजी कैन वर्क फॉर एनी ऑप्शनल, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो आपके लिए वो थोड़ा आसान हो जाएगा. अदर देन दैट, लॉ के लिए एक चीज़, आप, क्योंकि लॉ बहुत ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है, आपका GS2 का कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, लीगल अफेयर्स जितने भी होते हैं, वो सारे आपके लॉ ऑप्शनल में कवर हो जाएंगे. एंड लॉ ऑप्शनल से थोड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा, बेटर होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ा था इंडिया का. एंड बिकॉज ऑफ माई लॉ ऑप्शनल आई कुड रीड इट इन अ लॉट ऑफ डेप्थ एंड वेरी कॉम्प्रहेंसिवली. तो वो चीज़ें आपको लॉ ऑप्शनल डेफिनेटली फ़ायदा करता है. बट नॉनदलेस सिर्फ इस वजह से मत लीजिए कि लॉ ऑप्शनल ओवरलैपिंग है. सिर्फ इसलिए अपने ऑप्शनल को चुनिए कि अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं जेन्युइनली, और जेन्युइनली आप पढ़ने की सोचते हैं, क्योंकि आपको एक ऑप्शनल कम से कम 1 साल पढ़ना होता है. तो मेक श्योर यू लाइक योर ऑप्शनल ऑल्सो, एंड आपके पास एक सफिशेंट गाइडेंस हो. For law optional, there is one thing that I have to say कि law is not a very popular optional as such. तो आपको बहुत ज़्यादा material या help in the form of notes etc. you will not find in the market, unlike बहुत सारे options जैसे geography है, public administration है, sociology है, इनके notes आपको बहुत freely available मिलते हैं. But as such law के उतने ज़्यादा notes या material help आपको नहीं मिलेगा. सो वट आई डिड वॉज, क्योंकि मैंने कोचिंग्स ज्वाइन किया था, सो आई गॉट हेल्प इन द फॉर्म ऑफ नोट्स बाय पेइंग दैट अमाउंट. और एक और चीज़, अगर आप दिल्ली में नहीं है सिचुएटेड और आप इस तरह के कोचिंग नहीं अटेंड कर सकते, तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, विच इज़ एन ऑनलाइन, मैंने जहाँ से ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था, दैट वाज लॉ एक्सपर्ट MV. वो एक ऑनलाइन साइट है और इट इज़ बेस्ड इन चेन्नई आई थिंक. एंड देयर व्हाट आई डिड वाज दैट आई टुक अप द सब्सक्रिप्शन एंड इट वाज फॉर अराउंड आई थिंक 15,000. तो वो सब्सक्रिप्शन मैंने लिया था, और उसके बाद उसके साथ टेस्ट सीरीज़ भी थी. सो दे यूज़ टू गिव टेस्ट एंड आई यूज़ टू राइट दोज टेस्ट, स्कैन इट एंड गिव इट टू देम. तो ये मैंने फॉलो किया था फॉर माई लॉ ऑप्शनल. तो ये चीज़ें आप हेल्प कर सकते हैं. आई वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड कि मैंने 3 जगह ज्वाइन कर लिया था, जस्ट सो दैट आई एम नॉट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एनी सोर्स. तो प्लीज़ रिमेंबर, अगर बीच में आपको थोड़ा टफ लगने भी लगे कि ये चीज़ थोड़ी टफ हो रही है, इट्स ओके, यू हैव टू बिलीव इन इट. लॉ भी मुझे लगता था कि बहुत अनपॉपुलर सब्जेक्ट है और कहीं मैंने गलती तो नहीं की लॉ लेकर, बट जो आपका सब्जेक्ट है आप उसको ट्रस्ट करिए, बिलीव करिए और एक गाइडेड अप्रोच रखिए. हमेशा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखती रही, तो मुझे लगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे आए हैं थोड़ा बहुत उसी पैटर्न में आएगा पेपर भी. तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इफ़ दिस इज़ माई मटीरियल एंड दीज आर द क्वेश्चंस आई कैन डू इट. तो बस आप अपने मटीरियल को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को का कॉन्ग्रुएंस बना के रखिए कि वो दोनों मैच करें. दैट्स इट. सो दिस वाज माय कंप्लीट एंड ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने लॉ के लिए करी थी. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तपस्या परिहार है. मैंने UPSC CSE 2017 में 23rd रैंक प्राप्त किया है
एंड अभी मैं आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लॉ है उसके बारे में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है मैं वो बताना चाहूँ। सो लॉ ऑप्शनल के लिए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, तो वो जो नोट्स मैंने कहाँ से कौन से बुक्स रेफ़र की हैं मैं आपको वो बताऊँगी। तो बेसिकली लॉ में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। जो दूसरे पेपर में सब्जेक्ट्स आते हैं वो थोड़ा कंटेम्प्रेरी ओरिएंटेड है। तो उसमें आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, देन यू हैव क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स एंड कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स। सो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं जो मोस्टली सारे लॉ स्टूडेंट्स अपने लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मैं अपने सोर्सेज आपको बता देती हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। तो मैंने किसी भी सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड बुक यूज़ की है। बाकी जो बाज़ार में AK जैन के जो नोट्स आते हैं मैंने वो भी यूज़ किए हैं। वो सप्लीमेंट करने के लिए अपना जो स्टैंडर्ड बुक है उससे जो नोट्स बनाए हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए मैंने अपने नोट्स में ही उनको इंक्लूड किया हुआ है। तो पहला जो है सब्जेक्ट उसके बारे में बात करूँगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने नरेंद्र कुमार से पढ़ाई की है उसकी, और उसके बाद मैंने नोट्स भी नरेंद्र कुमार से बनाए हैं। सो नरेंद्र कुमार मैं आपको सजेस्ट इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही कंसाइज और सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने सारे जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है। और मैंने ये बुक पर्टिकुलरली इसलिए रेफ़र की क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम में इसी से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा था। दूसरी बात, जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैंने बेसिकली जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको रेफ़र करते हुए नोट्स बनाए हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की कोई भी बुकलेट आपको बाज़ार में मिल जाएगी जो सारे हर साल के हर टॉपिक के हिसाब से जो उन्होंने क्वेश्चंस कंपाइल करके रखे होते हैं आप वो ले सकते हैं। तो आपको इससे एक आइडिया हो जाता है कि जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्योंकि लॉ स्कूल में हम जो पढ़ाई करते हैं वो थोड़ी अलग तरह से पढ़ते हैं। हमारा एक ओरिएंटेशन अलग होता है उसको पढ़ने का, और यहाँ पर एक ओरिएंटेशन अलग होता है। सो ये हुई बात कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए मैंने जो बुक रेफ़र की नोट्स बनाने के लिए वो थी MP जैन, एंड अगेन मैंने AK जैन के जो नोट्स आते हैं वो यूज़ किए, और मैंने एक कंसाइज वे में कुछ जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपने नोट्स प्रिपेयर किए। सो नाउ मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के नोट्स बनाने के लिए जो बुक मैंने रेफ़र की वो है HO अग्रवाल, लेकिन मैंने बड़ा वाला एडिशन जो आता है उसका मोटा वाला बुक वो रेफ़र किया क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। और अगेन इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स रेफ़र किए, जो टॉपिक्स आते हैं उसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाए, और इसके लिए मैंने किसी और नोट को रेफ़र नहीं किया है। देन मूविंग ऑन टू लॉ पेपर 2, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी IPC की। IPC के जो टॉपिक्स हैं अगेन मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स रेफ़र किए, और उसके बाद मैंने नोट्स बनाए हैं। जो बुक रेफ़र की है वो है PSA पिल्लई की IPC। इट इज़ अगेन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक, लेकिन उसमें बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एक्सप्लेन किए हैं सारे टॉपिक्स, तो आई वुड रेफ़र दैट बुक। आपको वो ऑनलाइन भी मिल सकती है। देन टॉर्ट्स के लिए मैंने बांग्या रेफ़र की और मैंने उससे नोट्स बनाए हैं, मैंने कोई और नोट्स उसके लिए यूज़ नहीं किए हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए मैंने अगेन अवतार सिंह एंड बांग्या रेफ़र की है, जो कि पूरी तरह से सब्जेक्ट को कवर करती हैं, एंड बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने टॉपिक्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया है। देन मूविंग ऑन टू कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स। तो कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स में जो टॉपिक्स आते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड जो IPR है, तो IPR के बारे में मैंने कंसाइज नोट्स जो AK जैन के आते हैं मैंने वो पढ़े हैं, बाकी मैंने इसके लिए कोई बुक रेफ़र नहीं की है। एंड इस बार जो पेपर आया था उसमें IPR के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो आई गेस ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस नाउ। सो ये आप सिर्फ कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट करके छोड़ नहीं सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये गलती मैंने की थी कि मैंने IPR को बहुत सीरियसली नहीं लिया। सो पहली बात ये थी कि मेरा IPR कॉलेज में ऑप्शनल नहीं था, तो मैंने वो पढ़ा नहीं था, तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पर कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट समझ के मैंने उसे इग्नोर भी किया।
सो आई गेस IPR बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू रेफर अ गुड बुक फॉर इट। और जो टॉपिक्स हैं कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स के अंदर, जैसे कि RTI एक्ट या PIL, और तो इनकी पढ़ाई मैंने मोस्टली इंटरनेट से की है। कुछ जो क्वेश्चंस जिस तरह से आए हैं मैंने उन्हें देखा और मैंने इंटरनेट से सर्च करके सारे अपने आंसर्स प्रिपेयर किए। और जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट या फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इनके लिए आप किसी भी स्टैंडर्ड नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगेन इसके 2 पेपर होते हैं तो आपको आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है लॉ ऑप्शनल के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे से अपना जो टॉपिक है वो प्रिपेयर कीजिए, और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनको आप प्रेफर करते हैं नोट्स बनाने के लिए, आप उन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे आप अपना एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। एंड लॉ पेपर के आंसर्स लिखना, यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो एक तरह से एनीवे इजी हो जाता है, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस की हुई है पहले अपने कॉलेज एग्जामिनेशंस में। और यदि आप लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को लेके, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक। थैंक यू।